Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maths with Sahaab Adeel. In today's video, I will explain to you what is a ratio, what is equivalent ratio and how you have to simplify the given ratio. So let's start our today's lesson. What is ratio? Ratio is a comparison of two same quantities. What is the meaning of two same quantities? I will explain it in my lesson. Its symbol is a colon, and what is the unit of ratio? It has no unit because it is the comparison of two same quantities. Now, what is equivalent ratio? Equivalent ratio have three categories. Number one is where you have a fraction. How do you know that how you have to make the simplest form of this ratio? You can simplify it on the table of 2. सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पर सिंप्लीफाई होते हैं, ये दोनों नंबर 2 पर भी सिंप्लीफाई होते हैं, ये दोनों नंबर डायरेक्ट 8 पर भी सिंप्लीफाई होते हैं. आप इसको डायरेक्ट 8 पर सिंप्लीफाई करें. 8 1 8, 8 8 64. योर आंसर इज 1 by 8. सो यू कैन से 8 by 64 is the equivalent ratio of 1 by 8. You can write down ratio in form of fraction, or else you can write down fraction in form of ratio. Now move towards your second example, where a fraction is given to you. Its second one, its denominator is given, but you don't know which value will come over here. What you have to do, आपने ये देखना है कि इस 5 से ये 30 कैसे बने. 5 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 30. जो आप डिनोमिनेटर के साथ सॉल्व करते हो वही नंबर आप सॉल्व करते हो न्यूमरेटर के साथ. इन द सेम वे यू आर गेटिंग योर इक्विवेलेंट रेशियो. 2 times 6 is 12. So your missing number is 12. You can say that 2 by 5 is equals to 12 by 30. Means 2 by 5, its equivalent ratio is 12:30. Okay, now look at the second example where 3 by 4 is equals to 9 by dash. This number you have to find out. How you will find out this number? आपने ये देखना है ये 3 से 9 कैसे बनेगा. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ. 3 times 3 is 9. जो नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है वही नंबर आपका डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो व्हाट इज योर मिसिंग नंबर? योर मिसिंग नंबर इज 12. सो यू कैन से 3:4 which was given to you, its equivalent ratio is 9 by 12. Means 9:12. Now move on to your third category where you have to check whether these two numbers are divisible by any number. If yes, then you can carry forward this first one method. If no, then you have to think how you have to write down its equivalent ratio. First of all, you have to multiply it with 2. Your answer will be 14 times 18. This is the equivalent ratio of 7 by 9. अच्छा, कोई ऐसी फ्रैक्शन जो सिंप्लीफाई ना हो और हमें कोई ऐसा बॉक्स भी गिवन ना हो इक्वल के दूसरी साइड पर, उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप 2 से भी कर सकते हैं, आप 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. दिस ऑल विल गिव यू द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ दिस वन. 7 times 3 is 21. 9 times 3 is 27. These two are also equivalent ratio. 7 4s are 28. 9 4s are 36. These two are also equivalent ratio. You can say that all these ratios are equivalent to 7 by 9. Means आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आपके पास ऐसी फ्रैक्शन जो सिंप्लीफाई नहीं होती उसकी इक्विवेलेंट रेशियो आएंगी. Now we shall see that how to simplify the given ratio. Look at your first example. Your first example is 80:40. As I told you that ratio is a comparison of two same quantities and it has no unit. In every question, आपने सबसे पहले ratio का unit check करना है. This
एग्जाम्पल हैज नो यूनिट, तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे. सिंप्लीफाई मीन्स टू गेट द शॉर्टेस्ट फॉर्म. शॉर्टेस्ट फॉर्म मीन्स कि आप इसको डिफरेंट टेबल पर डिवाइड करते हो. जब भी आप डिवाइड करते हो आप दोनों नंबर को एक ही टेबल पर डिवाइड करते हो. बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे इज you have to simplify, means you have to cancel out the last zeros first. This 0 will cancel out this 0. What you left 8:4. अब आपने ये देखना है कि ये दोनों नंबर किसी एक टेबल पे डिवाइड होते हैं. ये आपके 2 से भी डिवाइड होते हैं, ये आपका 4 से भी डिवाइड होते हैं. हम डायरेक्ट 4 से डिवाइड करते हैं. 4 1s are 4, 4 2s are 8. This is your final answer. Because ये इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होता. सो जहां पर ये रेशियो में सिंप्लीफिकेशन एंड हो जाए, मीन्स वो एक टेबल पर डिवाइड ना हो, इसका मतलब है कि ये आपका फाइनल आंसर है. नाउ मूव ऑन योर सेकंड एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हर क्वेश्चन में यूनिट चेक करनी है. इट्स यूनिट इज सेंटीमीटर एंड इट्स यूनिट इज मीटर. आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. विच वन इज इजियर फॉर यू, गो विद इट. इट इज इजियर फॉर मी टू चेंज मीटर इंटू सेंटीमीटर. एज यू नो 1 meter is equals to how many centimeters? That are 100 centimeters, right? So यहाँ पर मैं मीटर को रिप्लेस करूंगी 100 सेंटीमीटर के साथ. ये मैंने मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज किया है. इट विल बिकम 15 सेंटीमीटर रेशियो 300 सेंटीमीटर. Once the units same, comparison of two same quantities, once these two quantities are having the same units, the units will cancel each other. Now start your simplification. 15 and 300, ये दोनों नंबर आपके 3 के टेबल पे डिविजिबल हैं. 3 5s are 15, 3 1s are 3 and 2 zeros will come as it is. Now 5:100, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो 5 के टेबल पर. 5 1s are 5, 5 2s are 10 and then 0. 1:20, ये दोनों नंबर किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते. दिस मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ मूव टूवर्ड्स योर थर्ड एग्जाम्पल. 48 seconds to 3 minutes. आप इस वर्ड 2 से कंफ्यूज नहीं होगे. योर क्वेश्चन इज हाउ टू सिंप्लीफाई द गिवन रेशियो. और आपका क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द रेशियो बिटवीन 48 seconds to 30 minutes. आप इसको रेशियो फॉर्म में लिखो. Now again check out the units, seconds and minutes. It is easier that आप minutes को seconds में change कर लो. 48 seconds ratio, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, राइट? आप क्या करते हो, आप 3 मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज करने के लिए उसको 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हो. इट विल बिकम 48 सेकेंड्स. इट विल बिकम 180 सेकेंड्स. नाउ यूनिट्स आर सेम, आप इनको कैंसिल कर सकते हो. नाउ यू हैव टू चेक कि आपका कौन सा टेबल इसको डिवाइड करता है. ये आपका डायरेक्ट 6 पे भी डिवाइड होता है, ये आपका 2 पे भी डिवाइड होता है. आप किसी भी टेबल से स्टार्ट ले सकते हो. आप अगर इसको 6 पे डिवाइड करो तो 6 8s are 48, 6 3s are 18 and 0 will come as it is. अब 8 और 30 ये आपके किस टेबल पे डिवाइड होते हैं? ये 2 पे डिविजिबल है. 2 4s are 8 and 2 15s are 30. अब 4 और 15 ये ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते. दिस मीन्स दिस इज योर फाइनल आंसर. Before starting the next example, I want to tell you one important thing about ratio. रेशियो में आपने हमेशा होल नंबर को कंसीडर करना होता है. रेशियो में ना तो आप फ्रैक्शंस को कैरी करते हो ना आप डेसिमल्स को कैरी करते हो, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू गाइज दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शंस आपकी किसी एक टेबल में नहीं आती. अब आप इस एग्जाम्पल को देखें. दिस वन इज फ्रैक्शनल फॉर्म, दिस वन इज डेसिमल फॉर्म, दिस वन इज अ मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म. आपने इन सबको एक ही फॉर्म में पहले लिखना होता है. इट्स 1/3.
आसान ये होता है कि आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करो। जब आप डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करते हो, यू हैव टू रिमूव द डेसिमल। जब आप किसी भी नंबर का डेसिमल रिमूव करते हो तो उसके नीचे 1 लिखा जाता है। डेसिमल के बाद में जितने नंबर होते हैं आप उतने जीरोस लगाते हो। दिस मीन्स योर नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 25/10। नाउ चेंज दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 3s, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3s 12, जो आंसर होते हैं उसमें ये आंसर ऐड होते हैं। 4 3s 12, 13 14 15, इट इज 15/4। अच्छा, जब रेशो में हमारे पास डिनोमिनेटर्स हो, फ्रैक्शंस हो, तो हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं? जब भी रेशो में आपके पास फ्रैक्शंस होती हैं तो आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हो। नाउ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर? 3 10 4। एलसीएम में आप इन नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आई विल टेक अ स्टार्ट विद 2 फर्स्ट। 2 3 को डिवाइड नहीं करता, इट विल कम एज इट इज। 2 5s 10, 2 2s 4, right? It is again on 2, 3 and 5 will come as it is. 2 1s 2, then it is divisible by 3 1s 3, 5 and 1, then it is divisible by 5. LCM में आप हमेशा एंड में 1 1 1 लेकर आते हो by doing your division with different numbers. अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, ये आपको LCM का आंसर देंगे। Your LCM is 2 2s 4, 4 3s 12, 12 5s 60. जब आपका LCM आ जाता है, LCM आप तब फाइंड करते हैं जब आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। जब आपका LCM आ जाता है, आप उसके बाद क्या करते हो? आप सब फ्रैक्शंस को LCM के साथ मल्टीप्लाई करते हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रेशो में ना तो फ्रैक्शंस इंक्लूडेड होती हैं और ना हम डेसिमल्स को कैरी करते हैं। इनके डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करने के लिए हम LCM लेते हैं। अब हम इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3 1s 3, 3 2s 6, 0 will come as it is. This 0 will simplify this 0. 4 1s 4, here is 6, 4 1s 4, 5 6, 2 will go there and 4 5s 20. यहाँ पर अब आपके पास न्यूमरेटर में कौन से नंबर हैं? 20 multiplied by 1, your answer is 20. 25 multiplied by 6, your answer is 150. 15 times 15, your answer is 225. Now you have to simplify the ratio. ये तीनों नंबर किस टेबल पे डिवाइड होते हैं? आप इनके लास्ट नंबर यूनिट प्लेस पे चेक करें। 0 0 5, इसका मतलब है ये तीनों नंबर आपके 5 से डिविजिबल हैं। 5 4s 20, 5 3s 15, 0 will come as it is. 5 4s 20, 2 will go there, 5 5s 25. अब ये दोनों नंबर आपके 5 से डिविजिबल हैं, बट ये नहीं होता। तो जहां पर आपके ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होते, ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस इन रेशियो। Okay, now look at your another important concept in ratio, that is of means and extremes. Means and extremes का concept क्या होता है और वो आप कब यूज करते हो? वो आप तब यूज करते हो इक्वल साइड की आपके पास लेफ्ट और राइट साइड पर रेशो होती हैं। अगर आपके पास एक रेशो लेफ्ट साइड पर हो और एक रेशो आपकी राइट साइड पर हो, तो फिर आप मीन्स एंड एक्सट्रीम्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। अब ये कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज करते हो? Product of means, it is always equal to the product of extremes. अब product of means क्या होते हैं? Means इनकी multiplication, means the center ones. 9 times 7, this is the product of means. Product is a keyword of multiplication. Product of means means center number multiplication, always equal to the product of extremes. These are called means and these are called extremes. 4x times 3. Now 9 times 7 is 63. 4x times 3 is number multiplied first, it is 12x.
Now you have to find the value of x where this 12 will go. It is multiplying over here. On the other side, it is going to divide. 63 by 12. अब आपने ये चेक करना है कि ये सिंप्लीफाई होते हैं किसी एक टेबल पर, ये 3 के टेबल पर सिंप्लीफाई होते हैं. 3 2s are 6, 3 1s are 3 and 3 4s are 12. तो आपका x का आंसर आएगा 21 by 4. लेकिन मैथ्स में हम हमेशा अपने आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में देते हैं. अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो दोबारा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होते, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको डिवाइड करते हैं. डिवीजन में न्यूमरेटर हमेशा डिवीजन साइन में होता है और इसको डिनोमिनेटर डिवाइड करता है. अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल में 21 नहीं आता, बट नियरेस्ट नंबर कौन सा होता है? 4 5s are 20, 1 will left. अच्छा, अब आप अपनी मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? आप यहां से स्टार्ट लेते हैं. 5 whole 1 by 4. This is the way to write down your answer, and now your x answer will be 5 whole 1 by 4. 5 whole 1 by 4. Okay, now I will tell you about one more important concept. As I told you, ratio is a comparison of two or more than two quantities of same units, right? Once those units are same, you can cancel out the unit because the ratio carry no unit. Now the concept is when ratio involving three quantities. First is x, second is y and third is z. अच्छा, आप इस क्वेश्चन में देखें, if x ratio y is equals to 11 ratio 8 and y ratio z is equals to 6 ratio 7, आपने क्या फाइंड करना है? x ratio y ratio z means ratio involving three quantities. अच्छा, आप जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करें. x is coming one time, y is coming two times, z is also coming one time. ऐसी रेशियो जो 2 टाइम्स आ रही हो या 2 टाइम्स रिपीट हो रही हो, आप उस रेशियो को हमेशा सेंटर में लिखते हैं. x रेशियो y रेशियो z. y सेंटर में क्यों है? क्योंकि ये एक रिपीटेड रेशियो है. अच्छा, जब भी आपकी रेशियो में 3 क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, आप यूज करते हैं एरो मेथड. And what is this arrow method? Look at its solution. X ratio y. What was the ratio? What was the value of x ratio y? It was 11 ratio 8. I just substitute the value of x. x पहले आ रहा है तो पहली वैल्यू भी x की है. y बाद में है तो बाद वाली वैल्यू y की है. अब आप नेक्स्ट देखें. y रेशियो z इज 6 रेशियो 7. अब आप y की यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं करोगे नंबर की, आप इसके नीचे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो, दैट इज 6 रेशियो 7. Now follow the arrow method. Arrow method is saying to you that multiply these two numbers first. It will give you the answer of x. 11 multiplied by 6. Your answer is 66. Now y answer this arrow. 6 8s are 48 ratio this arrow. Multiplication of these two numbers, 8 7s are 56. Once again, for finding the answer of x, this is a zigzag way. First you are moving in down direction, 11 times 6, then you have to move up 6 times 8, then again down 6 times 7. Now look at your answer, 66 ratio 48 ratio 56. इनके यूनिट प्लेस नंबर चेक करें आप. 6 8 6. इसका मतलब है ये 2 के टेबल पर सिंप्लीफाई होते हैं. 33 when 2 is going to divide 66, your answer is 33. Now 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 will go next, and 2 8s are 16. This is your final answer because 33 is divisible by 3 and by 11 only. ये जो 11 और 3 जो इसको डिवाइड करता है वो बाकी दो नंबर्स को डिवाइड नहीं करता,
इसका मतलब है ये तीनों नंबर किसी एक नंबर पर सिंप्लीफाई नहीं होते. दिस इज योर फाइनल आंसर. You will find multiple practice questions during the video. Here are the answers. First is 4 ratio 25, then 8 ratio 5, then 4 ratio 3. Fourth answer is 27 ratio 40. And fifth one is 1 ratio 3 ratio 4. And the last is the equivalent ratio answer, that is 1 ratio 4. With this, I am going to wrap up my today's video. Let's meet up again in my next video. Thank you so much for watching. Don't forget to like my video and subscribe my channel.